Hello students, today I am going to teach you about the operating system for any kind of the computer science, DCA, DCPA, PGDCPA and the informatic practices and that is the very basic topic about the operating system. Okay, this is the flow chart and this is the page about the operating system, any kind of the operating system, whether the MS-DOS, Unix, Linux and the Macintosh and the Android operating system for the Android phones. Okay, information about the operating system. And the very beginning, the MS-DOS Microsoft Disk Operating System. At the first, what is the operating system? Any kind of the machine need to step by step procedure to operate it. कोई भी मशीन जो होती है उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो MS-DOS जो था वो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. उस मशीन को ऑपरेट करने का एक सिस्टम था. फर्स्ट कंप्यूटर starts with the floppy disk, FDD, a floppy disk, then HDD drive. That's why the MS-DOS means Microsoft Disk Operating System. So the operating system have files. जो operating system होता has some files, and what are the at the first there is the written word about the for bootable. Bootable is the word when the computer bootable means what is the mean of bootable? What does bootable mean? Boot means when you start switch on the computer, a beep sound you listen, and this beep sound indicates you the computer is ready to work. Okay, and beep sound means the computer go through the disk operating system and computer reads MS-DOS means MS system file, input output dot system file, and driver space dot bin file and command.com. All four hidden files are in the DOS when you install DOS in your system. When now you have been working on the Windows, Macintosh, Linux, all those the graphics user interface, while the MS-DOS is single user interface disk operating system. So in which the all four files, very important files, they are hidden files. You are not simply look at on the screen after the implement the directory command of the computer, but when we can see it what are the hidden files on the DOS platform. So these are the ms.sys, io.sys, driver space .bin and command.com. MS-DOS basic file about the MS-DOS. Okay, the executable file io.sys file works for the input and output system. Driver space .bin manages the memory and space in the drive or FDD or HDD, and command.com, all the internal commands are included in it. Okay, these are very usable in DOS during the work. At the time when the MS-DOS was very popular at that time. After that, the Unix is introduced for the multi-purpose and multi-user DOS disk operating system. But MS-DOS is very simple, and the Unix operating system, more files are needed for bootable, and the essential for the bootable. And what are the functions of MS-DOS? Okay. Any kind of, not only the disk operating MS-DOS Microsoft Disk Operating System, but other systems can also perform this function, disk operating system, whether the Android, whether the Unix, Linux, Macintosh and DOS,
ओके, सो फर्स्ट द टास्क यू कैन गेट डॉस टू डू, जो काम आप डॉस से करवा सकते हैं वो पहले जो कॉलम में ये लिखे हुए हैं, टास्क डॉस डज ऑटोमेटिकली डू, और इधर जो राइट हैंड साइड का जो कॉलम है उसमें वो टास्क लिखे हैं जो डॉस आप कहें या नहीं कहें उससे ये काम करना ही होता है। देखिए हम कौन से काम करवा सकते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। टास्क यू कैन गेट डॉस टू डू, क्रिएट न्यू फाइल्स, डिलीट ओल्ड फाइल्स और गिव फाइल्स न्यू नेम्स। आप जब काम करें तो आप नई फाइल बना सकते हैं, ओल्ड फाइल को डिलीट कर सकते हैं या नई फाइल को नेम दे सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं। और फिर सेकंड है गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स दैट स्टोर्ड ऑन डिस्क, वो आपको जितनी भी डिस्क में फाइल्स आपने स्टोर्ड कर रखी है उन सब की लिस्ट दे सकता है, चाहे जैसे आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। उसमें dir कमांड होता है, डायरेक्टरी कमांड, और डायरेक्टरी कमांड के बाद उसमें डिस्क्रिप्शंस होते हैं, अलग अलग डिटर्मिनेशन होते हैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ, पेज वाइज, विड्थ वाइज, ऑल हिडन, ऑल दो। ओके, डबल द स्टोरेज कैपेसिटी और डिस्क, डिस्क की डबल द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिस्क, डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी को डबल कर देता है। फॉर्मेट न्यू फ्लॉपी डिस्क, फॉर्मेट ऑप्शन ज़बरदस्त, आप HDD, FDD इन सब को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मीन्स है कि ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बनाना, ताकि आपकी जैसे आपकी एक अलमीरा होती है उसमें कैबिनेट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फाइल अरेंज की जाती है। सेम थिंग जो है फॉर्मेट कमांड इस तरीके का डिस्क के अंदर, चाहे वो CD हो, DVD हो, फ्लॉपी डिस्क हो, SDD हो, सब में सेक्टर्स बना देता है, ट्रैक्स बना देता है, और एक डायरेक्टरी है एक ही ट्रैक के अंदर रहती है। बैकअप फाइल्स फ्रॉम हार्ड डिस्क टू ए फ्लॉपी डिस्क, हाँ हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क में बैकअप लेना है ना। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, रीऑर्गेनाइज द स्टोरेज ऑफ द फाइल ऑन ए डिस्क, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप फाइल को अलग अलग, वन काइंड ऑफ द फाइल एक फोल्डर में या डायरेक्टरी में, और अनदर काइंड ऑफ द फाइल इन अनदर डायरेक्टरी, और सम ऑटोमेटिकली वो खुद अरेंज करता है। सर्चेज एंड डिस्ट्रॉयज द वायरसेस, वो सर्च करता है, सर्च में हमको फाइल सर्च करने में और दूसरी भी चीज़ें सर्च करके, और खुद भी बूटेबल सेक्टर में, बूट सेक्टर में या मेमोरी सेक्टर में अगर वायरसेस आते हैं तो उनको नष्ट करता है सिंपली। और डॉस की जो यूटिलिटी है वो अभी तक की 92 से मैं, सिंस 1992 से मैं 90 से मैं कंप्यूटर में वर्क कर रहा हूँ, और डॉस जो है आप भले ही आप कितने ही ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस आ जाए, पर एट ए टाइम जो बहुत ज़्यादा डीपली जो खुद कंप्यूटर मेंटेन करते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वहाँ पर जो लोग होते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का नॉलेज रखते हैं, जो मेंटेनेंस करते हैं, वो डॉस को प्रेफर करते हैं, बिकॉज डॉस की जो यूटिलिटी है वो सबसे बेस्ट है। चाहे आपको पार्टीशन करना हो SSD का, हार्ड डिस्क ड्राइव का, या आपको मेमोरी मैनेज करना हो। सपोज करो विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ आपका चलना बंद हो गया है, हाउ कैन यू वर्क ऑन द कंप्यूटर इफ़ यू डोंट नो अबाउट द MS-DOS। अगर आप MS-DOS नहीं जानते और विन आपका win.exe, kernel.exe या कोई ऐसी फाइल एग्जीक्यूटिबल फाइल अगर आपकी चली गई है और विंडो आपका सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है, तो उस स्थिति में अगर आपको डॉस आता है तो आप डॉस के थ्रू जाके बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका जो कंप्यूटर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं हार्ड डिस्क पे। अब टास्क जो है कंप्यूटर खुद जो ऑटोमेटिकली करता है, गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कीबोर्ड, डिस्प्लेज एंड इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर्स। सबसे बड़ी बात है कि ऑल पेरिफेरल्स, जितने भी पेरिफेरल्स होते हैं उन सब से कंप्यूटर क्या करता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो एक बार बीप आता है, बीप के बाद फिर प्रिंटर होगा तो वो उसको चेक करेगा, स्पीकर को, वेबकैम को, आपकी कीबोर्ड को, माउस को, राइटिंग पैड को, सबको वो चेक करता है जो कनेक्टेड होते हैं उससे।
द कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑन द हार्डवेयर, हार्डवेयर के सारे ऑपरेशंस वो कंट्रोल करता है, लाइक द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द मेमोरी, मेमोरी और सीपीयू और कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल करता है। एलोकेट मेमोरी टू प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट करवाता है, चाहे वो रैम से हो। रैम जो होती है उसको जब ड्यूरिंग द वर्किंग, रैम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेमोरी। ओके, कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ पेरिफेरल्स डिवाइसेस, सारे पेरिफेरल डिवाइसेस का कंट्रोल करता है। आप सपोज कीजिए आपने प्लग एंड प्ले प्रिंटर आ गए हैं आजकल, तो नहीं तो पहले खुद आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ सकते हैं, प्लग एंड प्ले का मतलब कि जैसे ही आपने लगाया वो खुद इंस्टॉल कर लेता है। आपने एंड्रॉयड फ़ोन को कंप्यूटर से जोड़ा, ऑटोमेटिकली उनमें इस तरीके का फाइल होती है कि वो खुद ही उसके इंस्टॉलेशन हो जाता है उस डिवाइस का और वो डिवाइस वर्क करना लगती है। बट बिफोर बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती है जिनको हमको पहले कंप्यूटर को रीड करवाना पड़ता है। जैसे आपने न्यू प्रिंटर लगाया, पुराना कोई भी प्रिंटर और स्कैनर लगाओगे और कोई भी चीज़ आपने, चाहे वो ऑडियो सिस्टम हो चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ क्या होगा कि जब आप ये चीज़ करेंगे, जब लगा लिया आपने, तो लगाने के बाद क्या होगा कि आपने चालू करके और आपने स्टार्ट कर दिया है ना, आपका कंप्यूटर चल रहा था, आपने उसमें लगा दिया है ना, और आप उसको सपोज़ करो प्रिंट दे रहे हो या कोई काम करवा रहे हो, तो वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा या कंप्यूटर को स्विच ऑफ करके वापस से ऑन करना पड़ेगा, ताकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पढ़ ले, जो पेरिफेरल आपने अटैच किया है उसको पढ़ ले, और पढ़ने के बाद जो है वो अपने इसमें आपकी जो फाइल्स होती है, जो इम्पोर्टेंट फाइल्स config.c से, उसमें वो उसके लिए अपना एक मेमोरी बना लेगा और इस तरीके से वो उसको वर्क करवाएगा। उस हार्डवेयर का जो है बेसिक जो फर्मवेयर है, उसका जो इंस्टॉलेशन वाला जो फाइल है उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ द, ये हो गया, इस तरीके से वो कंट्रोल करता है। अब MS-DOS में जो है कमांड्स होती थी, अभी तक आप जो यूज़ कर रहे हैं वो GUI है। GUI का मतलब है ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब कि ऑल दोज कमांड्स, जो कमांड्स यहाँ पर लिखी हुई है नीचे इस फ्लो चार्ट में लेफ्ट एंड राइट में, ये सब सिर्फ DOS की है ना, सिर्फ DOS का कमांड है, और DOS का कमांड ही आगे जाके विंडोज़ और इन सब में पॉपअप मेनू के अंदर फाइल, ओपन, क्लोज, डिलीट, सेव एज, ये सब उसी में पिक्टोरियल फॉर्म में आए हैं, ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस में आया कि आपने क्लिक किया और क्लिक करके आपका वो काम हो गया। बट इसके पहले जो था उसमें क्लिक से काम नहीं होता था, यू हैव टू टाइप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विथ थ्रू द कीबोर्ड, आपको टाइप करना पड़ता था कि DIR और एंटर करना पड़ता था, तब जाके वो आपको लिस्ट दिखाता था प्रोग्राम की। आज तो आप फाइल मैनेजर में जाते, क्लिक करते और सारी फाइल आपके सामने खुल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो MS-DOS है, इनमें 2 टाइप्स ऑफ कमांड होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड्स व्हेन यू इंस्टॉल द MS-DOS, जैसे ही आप MS-DOS को किसी भी तरीके से कॉपी करके या इंस्टॉल करके जैसे ही चालू करते हैं, तो command.com नाम की मैंने फाइल ऊपर आपको बताई है, उस फाइल से ये इंटरनल कमांड्स सारे उसके अंदर अपलोड हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं और वर्क करना शुरू कर देते हैं। बट एक्सटर्नल कमांड के लिए जो स्पेसिफिक है, डिटरमाइन है, और उनके लिए स्पेसिफिक एग्जीक्यूटेबल फाइल की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर को उसको मीन्स आपका जो मशीन है और उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, और इंटरनल कमांड्स को भी फाइल की ज़रूरत होती है, पर ये डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं, मतलब काम करना शुरू कर देते हैं। तो MS-DOS में माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 काइंड्स ऑफ द कमांड, और यही कमांड जो है दूसरे भी ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, पर आजकल GUI है इसलिए डायरेक्ट वो कंप्लीट पूरा ही इंस्टॉल्ड करके देता है। सो इंटरनल में यूजेबल और अनयूजेबल मैंने इसको और बाइफर्केट कर दिया है। मीन्स जिनका यूजेबल का मीन्स है कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड, और अनयूजेबल का बहुत कम यूज़ है, वो सिर्फ कभी कभी या सिखाने के लिए जो काम आते हैं वो। तो पहले हम इंटरनल कमांड की बात कर ले। डायरेक्टरी कमांड शोज द लिस्ट ऑफ द ऑल फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। डायरेक्टरी के वर्जन्स जो हैं वो डिफरेंट है, अलग अलग तरीके से हम ले सकते हैं। इसके पास में ही लिखा है CLS कमांड, मीन्स क्लियर स्क्रीन कमांड। क्लियर स्क्रीन कमांड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में, बहुत सी जगह और बहुत सी लैंग्वेज में एज इट इज़ यूज़ होता है, बेसिक में यूज़ होता है, डिबेस में यूज़ होता है ना। आगे भी क्लियर स्क्रीन मीन्स आपकी स्क्रीन पूरी क्लियर हो जाएगी, उस पर जो भी है उसकी जगह बिल्कुल क्लियर स्क्रीन आएगी,
उसके हिसाब से इको कमांड आपको बताता है कि पाथ क्या है आपका। इको कमांड, इको इज़ ऑन एंड इको इज़ ऑफ, ठीक है। इको जब ऑन कर देते हैं तो आपको जितनी भी ऑटो एक्सेसिव बेच फाइल, config.sys फाइल वो आपको नज़र आने लगती है, और इको इज़ ऑफ कर देते हैं तो वो नज़र नहीं आता है। कॉपी कमांड, कॉपी कमांड सिंपल है, इधर से एक डेस्टिनेशन से अनदर डेस्टिनेशन पे कॉपी करना, फोल्डर टू हार्ड ड्राइव टू फोल्डर, फोल्डर टू CD टू DVD टू एंड्रॉइड फोन, ऑल दोस्त। prompt command allows you to determine or define your own prompt on the C कॉलन। आपका जो C हार्ड डिस्क है वो ही मेन हार्ड डिस्क होती है, और उसी में सारे सॉफ्टवेयर उसी में लोड होना चाहिए। आप किसी पार्टीशन में अगर कर दोगे तो वो डज नॉट वर्क प्रॉपरली। प्रॉम्प्ट से आप चाहे जैसा प्रॉम्प्ट बना सकते हैं, प्रॉम्प्ट का पता लगा सकते हैं। इरेज मीन्स इरेज करना। B कॉलन, C कॉलन जो है ये अलग अलग डिस्क में जाना। C कॉलन तो मेन हो गई। D कॉलन क्या होगा, वो आपका D कॉलन जो होगा, वो D कॉलन जो है आपको D कॉलन जो है वो अनदर डिस्क में जाने का, पार्टीशन में जाने की बात करेगा। E कॉलन पार्टीशन में जाने की बात करेगा। F जो कॉलन डेज है वो ये बताएगा। F कॉलन जो है आपको DVD CD इनमें जाने की, रिमूवेबल डिस्क में जाने की बात करेगा। B कॉलन रेन REN, रेन मीन्स रेन कमांड के बाद आप कुछ भी इन्वर्टेड कामा में दे देते हो तो इन्वर्टेड कामा में कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, सिर्फ रीड करता है एज इट इज़, उसको वो स्ट्रिंग हो जाता है। डेल कमांड डिलीट कमांड है। कॉपी कौन कमांड आपकी ऑटो एक्सेसिव बैच फाइल और config.sys फाइल को बनाने का काम है, और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। मेक डायरेक्टरी MD CD कम टू डायरेक्टरी, एंड RD रिमूव डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी MKDIR RMDIR। टाइप कमांड जो आपको टाइप कर देता है, टाइप करने के लिए मतलब प्रिंट में काम आता है। A कॉलन डेट, करंट डेट बताएगा। टाइम, करंट टाइम बताएगा। और बैच फाइल और कंट्रोल C कॉपी करने के लिए होता है। अनयूजेबल कमांड ब्रेक, किसी भी प्रोसेस को रोकने का ब्रेक कमांड, वो हम उससे भी रोक सकते हैं। कंट्रोल प्लस पेज ब्रेक से भी रोक सकता है। पाज, किसी भी जो प्रोसेस चल रहा है उसको सम टाइम्स के लिए पॉज करना। एंड वॉल्यूम कमांड, सो द वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, हार्ड डिस्क। वर्जन कमांड, वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जिट, बाहर आना। सेट, वेरीफाई। एंड ग्रेटर देन प्रिंटर मीन्स प्रिंट करने के लिए PRN एंड P। एक्सटर्नल कमांड्स आर द फॉर्मेट कमांड्स, अनफॉर्मेट कमांड। These external commands you should use in the before or in the guidance of the your teacher or mentor or instructor or okay, because these commands work speedily and damage. If you format command आप लगा देते हो तो पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। अनफॉर्मेट कमांड, अनफॉर्मेट करने के लिए sys कमांड। एफ डिस्क, फ्लॉपी डिस्क की जो है स्पेस बढ़ाने के लिए, ये सब यूटिलिटी कमांड है। डिफ्रेगमेंटेशन ऑफ द डिस्क, मेंटेन द मेमोरी एंड द डिस्क स्पेस एंड सम सेक्टर्स टू रिपेयर। लेबल कमांड, इट शोज द लेबल, यू कैन चेंज द लेबल ऑफ द डिस्क। अनडिलीट कमांड, जो डिलीट कर दिया है उसको अनडिलीट करना। रिकवरी कमांड मीन्स रीस्टोर मेमोरी मेकर। एक्स कॉपी कमांड, एक्स कॉपी जो है ट्री फोल्डर सबके साथ कर देता है। मूव कमांड, ये सारे आपके जो है पॉपअप मेनू में विंडोज़ के साथ ही ये अवेलेबल रहते हैं। प्रिंट कमांड, MSD कमांड। ट्री कमांड शोज यू द कंप्लीट ट्री फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी टू सब डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी टू डिफरेंट सब डायरेक्टरीज, और उसमें कौन कौन सी फाइल रखी है वो सब रूट बताता है टॉप टू बॉटम। vsave कमांड, सॉर्ट कमांड, बैकअप, MS बैकअप, फाइंड कमांड, रिस्टोर, सेटअप, एडलिन। डॉस्की कमांड जब हम वो कर देते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं तो आपके प्रीवियस हिस्ट्री वो पूरी बताते जाता है कि कौन से कमांड आपने कब लगाए। मोड, चेक डिस्क कमांड, स्कैन डिस्क कमांड, NDD, ग्राफिक्स, डबल स्पेस, स्मार्ट ड्राइव, अपेंड, मेमोरी मेकर, batch to and disk copy and disk up command, and fast open command, unusable command, fast disk comparison, replace, debug, subset, keyboard, assign and dis and attribute. So that is
मास कंप्यूटर राजगढ़, ये जो है मैंने आपको पूरा डास पढ़ा दिया है।